आप गुस्सा ज़्यादा करने लगते हो, ऐसे होता है ना, तो आप Yeah, I mean, you get हाँ, annoyed on very little things. वेरी Like वो अरे तो बहुत ज़्यादा और that लड़कों में happens to I एवरी think that गाय happens to मैंने तो me देखा है कि हर after लड़की a couple of days work. So after 3 years of attempts, I can only मतलब yeah, it's very natural कि you will get annoyed on those things. अरे मैं 2 बहुत दिन छोटी-छोटी ज़्यादा काम करता हूँ, so I start to get annoyed with people in my life or with people in my work. मैं मतलब मैंने All right, welcome everybody to the Lehman Brothers. So this is the Lehman Brothers podcast that we've just started. And so I'm Hirak, and we've got Hirsch here. So this is going to be it. So we have come up with an idea of a podcast that we would try to do weekly or whenever we get time. And the reason we started is because I mean, why not? We've got a lot of things to talk about in our lives, and maybe things which are happening in the world outside. So I think that's about it, and that's why we think that maybe our friends would like to listen in, and then maybe they'll get to enjoy what we talk about and the banter that we do. So I think that's it. So I'll introduce Hirsch as well. So Hirsch and I know each other since now 7 or 8 years यस almost. Yep, one of 7-8 the साल longest यस friendship. Yeah, it's one of the longest friendships I've had in my life. Probably the only friendship as well. Uh, and we both met while we were doing CA, while we were यस in an एंड internship in the CA. It's called an articleship. Yeah, यस and yeah, it's going to be a lot of fun future years, and it has been fun. It has been a fucking crazy ride. So, but not a smooth ride, I would say, because and I we can रोलर jump कोस्टर into it राइड after. But yeah, so if we, I mean, let's go a few years back, right? So we were both doing CA, and as it happens in CA, some people go through, some people don't, and one of us passed, one of us did not. It's and that happened unfortunately. And then I think we did not keep talking because you had to take a break. यस Is is what I think and is what I know. So maybe if we can start just with why did you take a break? Why do you think you had to take a break? Because I've seen people. So I've seen people who start CA and then they give their exams after रिपीट every 6 months. 6 They मंथ्स keep यस giving it for years and years, but they don't. Yeah, but they don't take this long of a break ever. And when I say ever, it's like a 2 or 3 years break that you did, that you took फॉर from गिविंग social media, and not only social media, but also from real people as यस well. 3 साल से आई मीन 3 साल से तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा यस इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टाइम ऐसा तो नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा टाइम था बट पहले 2 साल 2015 में मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया दोनों ग्रुप वो डेफिनेटली वो क्लियर नहीं हुआ Yeah. क्योंकि वे सीरियस नहीं था फिर मई 16 फिर भी सीरियस नहीं था नवंबर 16 में थोड़ा सीरियस हुआ बट वो भी क्लियर नहीं हुआ वहीं से थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट हुआ कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो आ रहा है पढ़ाई में भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर मेंटल स्टेट में भी प्रॉब्लम आ रहा है कि सब अब सीए बन रहे हैं बट मैं सीए नहीं बन रहा हूँ अब कुछ प्रॉब्लम आने लगे हैं मतलब मेंटली वो फेलियर टैग लग जा रहा है तो मेंटली भी स्टेबल नहीं रह पा रहा हूँ एंड कंटिन्यूसली वही दिमाग में चल रहा है कि भाई तू सीए क्यों नहीं बनना है सीए में नहीं बन रहा है बट फिर उसके बाद मई 17 आया उसमें शायद मेरा 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन हुए अकाउंट और एसएफएम में एग्जामिशन हुए देन So उसके बाद just a break here. So जो लोग को पता नहीं है कि CA
tough fashion क्या है, या how does exam, how do the exams in CA work, right? So there are exams after every 6 months, right? हम Yes. नवंबर में देते हैं and then मई में देते हैं, and then Hmm. again November and May. Is it May or June? मतलब May, it keeps May, changing, right? November. But हाँ, हाँ. every 6 months, yes, every 6 months there's an attempt. So we both gave our first attempt In November 15, yes. Yes. So वहाँ से Journey, your हाँ. cycle started, right? So November 15, May 16, then May 16, November 7, November 16. November 16. Yeah. In अच्छी. So that's what you're talking about. And then, Hmm. and also one of the things that you mentioned is exemption. So again, for those of you who don't know, CA is divided into two groups, and we are specifically just talking about the finals exams. So final दो group में divide होता है. Art subject, you have to clear all 8 to clear CA to become a CA. Plus, but there are also two conditions की conditions. Out of 800 you at least require to get 400 marks. First ये basic condition, and exactly. and each subject require at least 40 marks. At least 40 marks, right? And two basic condition and aggregate require 200 in each group. Each group, yeah, exactly. And जब two, when you said कि exemption means whenever you get 60 or above 60 and yes. Yeah, and that is an exemption. And exemption means next attempt में देखो वो subjects नहीं देंगे. Next attempt में तू सिर्फ 5 या 6 subjects जो भी बाकी है सिर्फ वही दे सकता है. Yes. Right. So okay. So when did you get your exemptions? Like May 17 में मेरे 2 subject में exemption हुए, account और SFM में. May 17. हाँ, May 17 में. After 3 attempts. हाँ, after 3 attempts मतलब November 15 में कुछ नहीं हुआ, May 16 में कुछ नहीं हुआ, November 16 में भी कुछ नहीं हुआ. 1.5 years. हाँ, 1.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ. क्योंकि उसका भी प्रीवियस, क्योंकि मेरा मेन क्या था कि IPCC जो है, IPCC में भी यही हुआ था कि 2 साल मेरा फर्स्ट टाइम में November 12 में मैंने फर्स्ट IPCC का एग्जाम दिया, एंड उसके बाद सेकेंड ग्रुप की एग्जाम मैंने 2 साल कंटिन्यूसली दिया. मतलब हर एक 6 महीने में भी IPCC की भी एग्जाम आती थी, तो वो कंटिन्यूएशन में चलता रहा. Yes. Right. IPCC so you went through the same journey in the earlier. So IPCC is the second level of CA, where you also went through the same journey of एक group pass हो गया है, but दूसरा group नहीं हो रहा है, which happens with millions of students. People. I mean, it's not uncommon, right? और second group, if you are a student in CA, 50% से ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे internship में या articleship में जो अभी भी second group दे रहे हैं. और मेरा right and you went the same journey. So तो IPCC में भी वही रहा कि November 12 में एग्जाम दिया, फिर वो जाके मैं पास हुआ. फर्स्ट ग्रुप तो मेरा November 12 में फर्स्ट बार एग्जाम दी, वो क्लियर हो गया, बट सेकेंड ग्रुप मेरा November 14 में क्लियर हुआ, IPCC वाला. एंड फिर still second level अभी खत्म हुआ. हाँ, IPCC का लेवल मेरा November 14 में क्लियर हुआ. जो IPCC की जो वो सर्टिफिकेट आता है IPCC वाला, वो November 14 के बाद आया. And just एक साल पहले फाइनल के सिर्फ एक साल पहले क्लियर्ड द IPCC. हाँ, तो तब तक तो मैं जनरली पीपल हैव एटलीस्ट 2.5 साल होता है. 2.5 साल तो होता है. 2 साल भी गिन ले, अगर किसी का सेकंड ग्रुप ही नहीं हुआ तो 1 साल में क्लियर हो जाता है जनरली. बट मेरा थोड़ा IPCC थोड़ा बिगड़ गया था, मतलब 1 साल चलता रहा. हाँ, चलता रहा. फिर हम कम बैक टू द फाइनल की हम May 17 में थे, 2 एग्जामिशन हमारे आ चुके थे. बट एग्जामिशन में भी कैसा रहता है कि हमें 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स. Why are you calling yourself हम? First of all, मैं तेरे को तू बुला रहा हूँ, तू को हम बुला रहा है. What the fuck? We have started this podcast to shit talk each other, not to glorify ourselves. So अगर हम बोलने वाला है तो fuck off. Okay, this is not. I am not going to let it. हाँ, तो मैं suddenly you just started. Okay, so
हमने सेकंड ग्रुप दिया, हमने दो मैंने दिया। एग्जाम ओके, पास चलो किए, चलो चलो। तब हाँ मैंने तूने हाँ हाँ मैंने ओके मई 17 में वो द एग्जामिशन हुए। उसके बाद उसमें एग्जामिशन में एक कंडीशन रहता है कि अगर आप नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं कर पाए तो एग्जामिशन भी आपके विड्रॉ हो जाता है। मतलब चला जाएगा, हाँ राइट, चला जाएगा। तो मई 17 के टाटा बाद बाय बाय। हाँ तो मई 17 के बाद नवंबर 17 में एग्जाम दिया। तो वो भी मैंने फोकस फर्स्ट ग्रुप के ही रखा कि एक ग्रुप निकल जाए तो मैं सेकंड ग्रुप तो उसके बाद कर लूंगा मैं। बट नवंबर 17 में भी आई थिंक मैं लॉ में मेरे 35 ऐसे कुछ आ चुके थे। फिर मई 18 भी आया, उसमें भी ऐसा हुआ कि मेरा ऑडिट में 38 या 37 आ चुके। आई रिक्वायर ओनली 40 इन ईच सब्जेक्ट टू गेट पास थ्रू द वन फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि दोनों में एग्जाम्शन से 60-60 थे। राइट, सो 60 तो और वो 65। ग्रुप पे पहले बात करते हैं। तो हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू थिंक एंड दिस इज अगेन आई बिकॉज आई डोंट नो, सो डू यू थिंक इतने सारे अटेम्प्ट आने का रीजन सीए में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये है कि दे ऑलवेज ट्राई फॉर बोथ ग्रुप्स टुगेदर एंड दे यस डोंट रियलाइज कि एक एक ग्रुप करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा? इज दैट द 100। प्राइमरी रीजन यू थिंक फॉर ऑल द अटेम्प्ट? हाँ अगर आपको लग रहा है ना कि आप में कैपेबिलिटी है और मेरे केस में भी वो होता है, आई मीन हाँ मैं भी मेरे केस में वो था पहले से बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर गिविंग सीए फाइनल्स यू विल नेवर थिंक कि मैं एक अटेम्प्ट में सिर्फ एक ग्रुप दूंगा एंड डिलिबरेटली मैं 2 अटेम्प्ट दो दूंगा, time बाद में सीए फाइनल पास होगा। Nobody would think like that. हाँ Like everybody would be like मैं 2 ग्रुप साथ में हो जाएगा और दैट्स इट, माय सीए वुड बी कंप्लीट। सो आई विल सजेस्ट ओके, कि मुझे उस पे भी हाँ कि देना है तो एक ग्रुप अभी हाँ, दो। अगर 2.5 साल भी मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि वो आईपीसीसी के 2 तो सेकंड ग्रुप रह गया था। तो अगर तूने घर पे ऐसा बोला होता while हम्म going for the CA finals for the first time कि मैं हम्म दो ग्रुप नहीं एक एक ग्रुप दूंगा, तो डू यू थिंक तेरे पेरेंट्स माने होंगे? पेरेंट्स तो नहीं, बट दीदी सीए है ना तो दीदी नहीं मानती। मुझे लगता था पेरेंट्स तो एटलीस्ट मान जाते, बट दीदी का थोड़ा Oh, प्रेशर है। so I thought the other way around. But not the other way around, but I thought at least मतलब at least दीदी will support you. I thought that because हाँ she would have gone through the same process और हाँ she knows कि कितना हार्ड वर्क है। So I thought कि at least वो तेरे को सपोर्ट करेंगे, but you are saying कि वो स्पेशली वो नहीं करते सपोर्ट ऐसा। हाँ बट पता नहीं उनके माइंडसेट में ऐसा था कि दोनों ग्रुप ही देगा तो बेटर रहेगा, कि कोई एक ग्रुप तो तेरा निकल जाएगा, वैसे वाला था तब का माइंडसेट ऐसा था। अब बाद में मई 19 के बट बाद अभी लग रहा है ऐसी कि बात हुई थी मतलब? हाँ हुई थी एक Did you बार। ever discuss this at your home? Okay. Before even हुई थी giving the first time like exam? ना, बिफोर नहीं। मैंने नवंबर 17 में जब एग्जाम दिया ना तब मुझे पता चला कि भाई ये नहीं, मतलब दोनों ग्रुप में दे रहा हूँ ना तो दोनों में मैं मतलब दोनों में लिपस रहा हूँ। एक में भी अच्छा नहीं कर रहा हूँ, या दूसरे में भी उससे घटिया करके आ रहा हूँ। ओके, तो तब ये बात घर पे हाँ होना मतलब 2 चालू हुई साल कि बाद अभी 2 एक साल एक बाद जब पास। नवंबर 15 से लेके नवंबर 17 से ऐसी कोई बात नहीं हुई। जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा था कि चल तू फेल होगा, नेक्स्ट में चल कुछ ओके, हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, एक हो सो जाएगा, सो वैसे। एवरी अटेम्प्ट के बाद पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता था? और आई आल्सो वांट टू नो नॉट ओनली पेरेंट्स बट आल्सो दीदी का क्या रिएक्शन रहता था आफ्टर एवरी अटेम्प्ट? बिकॉज हाँ as we established के दीदी खुद सीए है, she has gone through the same process. She has given the exam. She knows how much यस work it takes to clear all the subjects, सब्जेक्ट्स यस either in one go or two go or however many you have at that. But so after every attempt, क्या discussion होता था घर पे? Because I'm and honestly I'm not bragging because I've never experienced it. मुझे नहीं पता है and I fortunately मुझे नहीं पता है, but I would like to know के because I understand क्या होता होगा एटमोस्फियर घर पे। एक बार नहीं होता यू ना तो फेल वंस, पेरेंट्स को पता है कि ठीक है कुछ दिस इज लाइक अ हाँ टफ एग्जाम, ठीक है फेल हो गया, हो गया, एक नेक्स्ट दो टाइम बार दे लेंगे। चलेगा। बट अगर बट एक व्हाट साल हैपेंस 2 आफ्टर? साल, हाँ 1 साल 2 साल फिर 3 साल, फिर आप अपने ऊपर क्वेश्चन और डाउटिंग आ जाता है। पहले तो क्या होता था कि 1-2 साल तो मैं ऐसे ही दूसरों को कोसता रहता था कि भाई दीदी की वजह से नहीं हुआ, या फिर मुझे यू नो
अलग से रूम Okay. नहीं मिलता, या फिर मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, या कोई और से और बहाने करके मैं टाल देता था दूसरों के ऊपर कि भाई इसकी वजह से नहीं होता, इसकी Oh, वजह से so नहीं। just हाँ, ऐसे ही blame टीचर game, right? ब्लेम, But हाँ। but still internally did you know कि तेरे वजह से नहीं हो रहा है कि नहीं नहीं, मुझे तुझे पता था internally कि भी वो होता था मेरी वजह से ही था, ऐसा? मुझे पता है, हाँ। मुझे पता है कि ये सारी गलतियां मेरी है। जिस मतलब मई 17 में मुझे लगने लगा था कि भाई अब मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता, तब तब जाके मेरे दो सब्जेक्ट में एटलीस्ट एग्जामिशन आया, मैं सीरियस थोड़ा वहां से स्टार्ट हुआ। एंड देन फिर जैसे ही नेक्स्ट अटेम्प्ट और ये में, जो ब्लेम तू करता था कि हाँ दीदी की वजह से नहीं हो रहा है या हाँ, लाइब्रेरी नहीं जा रहा हूँ, इसकी वो किसको बोलता था तू? मतलब डिड somebody मैं दीदी से ही जनरली used to come and जनरल ask you कि भाई हाँ, क्यों नहीं, नहीं हो रहा है? जनरली एग्जाम का जब रिजल्ट आता था तो एक 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 हफ्ता तो जैसे मैं पूरे दिन अंदर रूम में बैठा रहता था। वो एकदम दिमाग तो राइट। वैसे भी कुछ चल नहीं रहा था कि क्या करे क्या करे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस, क्योंकि एटलीस्ट दीदी का तो क्या था कि उसका एक ग्रुप तो हो गया था, उसके बाद फिर सेकेंड ग्रुप हो गया। तो ऐसे पापा मम्मी ने भी राइट, मेरे बारे में सोचा रखा था कि उसका भी चल एक ग्रुप हो जाएगा तो फिर सेकेंड ग्रुप भी नेक्स्ट में हो ही जाएगा, या हो फिर जाएगा, नेक्स्ट राइट। नेक्स्ट में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। इतना लंबा तो 5 साल की जर्नी नहीं हो जाएगी ना। सीए फाइनल में मैं 5 साल हो रहा हूँ, जनरली 5 साल में तो लोग सीए बन जाते हैं, मैं तो सीए फाइनल में सिर्फ 5 साल की बात राइट, कर रहा हूँ। राइट। तो ये फिर ब्लेम यू हाँ, स्टार्टेड गिविंग, कि यू मैं दीदी जस्ट को देता था कि भाई दीदी तू, ओके मेंटली तू हाँ सोच लेता था कि हाँ नहीं कि इस बार मेरा इसकी वजह से नहीं हुआ ऐसा। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले ब्लेम ओके, ग्लेम तो करना ही बंद कर दो, कि प्रॉब्लम खुद में ही है, ये तो डिफाइन करो कि बट हाँ अगेन हाँ। मतलब तेरे को ऐसा लगता है कि घर पे अगर आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स अगर पेरेंट्स ने, दीदी ने और तूने मिलके बैठ के बात की होती हम्म फॉर हाफ एन आवर लाइक आफ्टर योर रिजल्ट हम्म, कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड यू वुड हैव सेड कि दीदी की वजह से नहीं हुआ है, तो क्या रिस्पॉन्स आता? अ, उस पे भी मुझे लगता था कि बात नहीं होती होती ही नहीं, मतलब बात ये होती ही नहीं, ये हम अपने पेरेंट्स से या अपने एल्डर से कोई ऐसी बातें ही जनरली, अरे कोई भी बात हो, तू सिंपल अपनी मनी मैटर्स पे भी तू बात करना चाहता है, अपनी तू बैठ सकता है, तू इतना बता, तू अपने पापा से भी अपने बोले। हाँ मतलब बट बट आई थिंक मतलब एक मनी मैटर्स पे भी बात कर सकता है इजीली, बट आई थिंक वो तब आता है जब यू एक्चुअली फाइनेंस, प्रूवन योरसेल्फ हाँ फॉर अ फ्यू, हाँ not only financially but anyway in like normal life तेरा जॉब हो गया है, सेट हो हाँ, गया है, नौकरी कुछ चालू हो गई है, एंड कुछ देन हो रहा है एग्जैक्टली, विदाउट देयर सपोर्ट, तब जाके वो शायद तेरी बात हाँ सुनना कि चालू करेंगे। हाँ बट ये मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई डोंट वी टॉक विद आवर पेरेंट्स। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अरे आई यूज्ड टू टॉक विद माय अभी अभी नहीं, पेरेंट्स अभी लाइक चल, मैं बोल आफ्टर रहा हूँ कि एवरीथिंग। अभी अभी बहुत बहुत खुला है, बट उस टाइम पे माइंडसेट ऐसा था ना कि ये बात मैं करूंगा तो ब्लेम मेरे पे ही आ जाएगा, तो इससे बेटर बेटर है कि बात ही नहीं करना है, घर पे भी नहीं करो सीधा। और पेरेंट्स भी तुझे अकेला छोड़ देते थे। हाँ, कि रहने दे, इसका वैसे भी दिमाग सड़ा हुआ है फेल होने की वजह से, तो इससे बेटर कि तू भाई अकेला तो ही, बात मतलब तू, हाँ तू पढ़ अपनी जगह, तू नेक्स्ट में ट्राई कर, हो जाएगा तेरा, वैसे वाला, सिर्फ ऐसे वाला मोटिवेशन मिलता था। बट इंटरनली इंटरनली तेरे को ऐसा फील होता था कि पेरेंट्स आके तेरे को पूछे या बात करे? अ, ऐसा तो बोल सकते हैं कि एक बार, वैसे तो पूछा है, हर बार पूछा है, बट वो एक गैप चाइना वॉल जैसा बन जाता है, थोड़ी सी वो बीच में दीवार बन जाती है ना कि हाँ वो है, राइट, कि ऐसे राइट। ऐसे कैसे बात करे यार, मेरी गलती होगी, क्योंकि मैंने ब्लेम गेम अपने ऊपर डालना जैसे चालू किया ना, देन सेल्फ रियलाइजेशन होने लगा कि भाई अब अब सब लोग सेटल हो रहे हैं। मई 17 से ऐसा चालू हुआ कि सब लोग सेटल हो रहे हैं, तू भाई सीरियस नहीं हो रहा है अपनी पढ़ाई में, या फिर लाइफ में सीरियस नहीं हो रहा है, तुझे कुछ करना पड़ेगा, रदर कि ऐसे ऐसे ही तू सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहे। हाँ, मुझे पता है, मैंने नवंबर 15 मई 16 में ये बहुत किया है, और मैं अगर कोई ये देख रहा है ना कि सीए फाइनल का बंदा देख रहा है या आईपीसीसी का भी कोई बंदा देख रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि बंद करो, अगर लाइफ सुधारनी है ना तो
सोशल मीडिया तो फर्स्ट सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई जरूरत नहीं। 1 साल तो मैंने उसी में बस लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बस उसी में देखने के लिए मैंने अपना टाइम पूरा बर्बाद किया। And this is more applicable in this, हाँ, I can't say this era because decade, we are this a decade, generation, this but this decade. we are in the same decade and same generation. But during the recent year, I think this is हाँ, more so that you have to stop looking at those things. हम्म, And we are not talking about only CA finals. I mean, again, this कोई भी कोर्स podcast is उठा not लेने। going to be about. हाँ, सीए Yes, फाइनल so we कोई are भी कोर्स कर रहा because हूँ। correct anything. And not even studies. Like I am हाँ, not even talking about studies. Anything that you have to or you put your mind to. मतलब you are saying कि social media नहीं होना चाहिए लाइफ में हाँ, ऐसा. एक For that. आपको पता ही होता है कि आपके अंदर एक खराब हैबिट बिल्डअप होना चालू हो चुका है। कुछ भी हो, कुछ भी सोच लो, या कोई भी टॉपिक पकड़ लो, आपको पता है कि आप मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हो। आपको अंदर इंटरनली पता ही रहता है कि भाई आप इस लिमिट से ज्यादा जा रहे हो। हर दिन में 5 से 6 घंटे कुछ ज्यादा यूज कर रहे हो। या फिर कोई भी ऐसी साइट यूज कर रहे हो कि आपको जो आप नहीं चाहिए, मतलब पॉर्न साइट या कोई भी साइट देख लो, आपको पता होता है कि भाई नहीं करना चाहिए, फिर भी आपके दिमाग में ये रहता ही है। वो डेली हैबिट कोई ट्रिगर करती है तो वो आप उसी के तरफ चले But जाते हो। then you ignore yourself. हाँ, So on one hand, तेरे को पता है कि तू ज्यादा कर रहा हम्म, है Instagram, Facebook, and I knew it because हम्म, again, we can right now talk about this very freely because हम दोनों का maturity level 5 साल में कुछ ज्यादा हो गया है. हाँ, But at the time I knew it कि ये exam आ रही है, still he's on very active. I mean, I can't even say active because active लोग रहते थे, but you were हाँ, hyper डेली, active on those. हाँ, डेली एक्टिविटी पे So, पोस्ट तब करना। मैं नहीं बोलता था because I thought कि I don't want to seem like a person कि वो जो ज्ञान देता हूँ ज्ञान सबको, देता है, समझ गया मैं। जो पास होके बैठा है and then now he is going to हाँ, मतलब दूसरे समझ लोगों गया। के घर पे जाके बोलता है कि ऐसा मत करो, तभी जाके I didn't want that guy. But ठीक है, तो okay, coming back on the timeline, this, by the way, this podcast can easily be named Tenet because we are going हर 6 months पे हम वापस भी जा रहे हैं, so timeline थोड़ा difficult हो रहा है follow करने के लिए. Okay, so coming back to November 17, is that when you realize कि अभी सब बंद करना है? हाँ, कि अब नहीं पास हुआ ना, तो मेरा जो नवंबर 17 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसमें भी पास नहीं हुआ। मेरा 2 एग्जामिशन तो पेंडिंग अभी पड़े थे, बस अब नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट में ही मुझे क्लियर करना था। रेदर तो मेरा वो एक जो फर्स्ट ग्रुप में भी चांसेस थे कि पास होने में, सिर्फ एक 40 मार्क लाके भी पास हो सकता था, वो भी चला जाता अगर वो सीरियस नहीं होता तो भी। तो May 18 एंड नवंबर 18, May 18 में भी क्या हुआ कि मेरा एक सब्जेक्ट में मैं सिर्फ डॉट पे अटके गया। मतलब ऑडिट में मेरे 45 जितने आ गए थे और लॉ में मेरे 38, मतलब 2 मार्क्स से रह गया था उसमें भी। सेम मेहनत हुई थी तो 2 मार्क्स से उसमें रह गया। फिर लगा कि अब तो लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि 3 अटेम्प्ट मिलते थे। May 17 से मतलब नवंबर 18 तक आपको टाइमलाइन मिलता था, तो May 18 भी चला गया मेरा। अब आया नवंबर 18, अब हाइपरटेंशन चालू हो गया कि भाई कि अब नहीं हुआ तो भाई मैं खत्म। और घर से भी ये हो गया था कि अगर तेरा ये ग्रुप नहीं हुआ तो हम तुझे नहीं करने देंगे, क्योंकि तेरी हम देख रहे हैं कि तेरी मेंटल हेल्थ जा रही है, तू डिप्रेस हो रहा है, तू किसी से बात नहीं कर रहा है, तू ये मतलब ये चालू हो चुका था। ये मैं बोल रहा हूँ कि नवंबर 17 के बाद थोड़े थोड़े वो मतलब सोशल मीडिया सब कुछ बंद होने लगा, व्हाट्सएप और सब कुछ हटने लगा था। एंड देन फिर नवंबर 18 में लगा कि अब हाँ, फिर वो 6 महीने जो मैंने 3 महीने जो 4 महीने मेहनत की ना, मैंने वो फाड़ दिया मैंने कि भाई अब कुछ करना है तो इसको निकालूंगा या फिर खत्म, मैं इसे छोड़ दूंगा, ऐसा हो गया था। एक ग्रुप दोनों दिया था उस टाइम भी। मेरी यही गलती हो रही थी कि मैं 6 सब्जेक्ट, मतलब 8 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट तो एग्जामिशन थे, बाकी के 6 सब्जेक्ट में मैं एग्जाम दे रहा था। बाकी 6 सब्जेक्ट की दे रहा था, मतलब फर्स्ट ग्रुप के 2 सब्जेक्ट और सेकंड ग्रुप के 4 सब्जेक्ट। ये भी गलती मैं एक और कर रहा था। ये नवंबर 17 और May 18 में भी हुआ। तब तक you start any
उस मतलब ये जब तू अटेम्प्ट्स दे रहा था, डिड यू स्टार्ट एनी जॉब और एनी वर्क ऑन द साइड, या तू अभी भी सिर्फ सिर्फ पढ़ रहा है नहीं, घर पे? मैं व्हाट सिर्फ इज घर पे द, पढ़ रहा हूँ बिकॉज घर आई हैव पे। सीन द रीजन आई आस्क इज, मैं अपने बहुत फ्रेंड्स है ऐसे, राइट, कि जो हाँ 3 अटेम्प्ट के बाद दे स्टार्ट स्टार्ट working at a हाँ firm, yeah, at somewhere, just to convince their parents or people at home कि कि मैं अभी भी I am earning something, and it's not wrong, right? I mean, they हाँ हाँ have the हाँ skill, they can still work at CA firms, but just to calm people down at the home कि घर पे सब शांत रहे, हाँ उसकी वजह से at least they are going to a day job, कि सबको लगे कि चलो अटेम्प्ट भी दे रहा है साइड में, बट और एक साइड में मैं he is इनका also स्टार्टेड अर्निंग। हाँ बट बट क्यों तू ऐसा नहीं कर रहा, नहीं you कर do रहा था, not क्योंकि go for it. दीदी दीदी का एक ये पॉजिटिव पॉइंट रहा है कि अगर तुझे पास होना है ना, क्योंकि एक डिग्री होगी तो एक फर्क तो पड़ता है भाई। चलो तुझे बिजनेस भी स्टार्ट करना Yeah, है, सब कुछ करना है, चल तुझे जितने आइडियाज है वो तू अब इम्प्लीमेंट कर ले, बट एक डिग्री ले ले। अगर कुछ नहीं बन पाया तो डिग्री से तुझे जॉब तो कहीं okay, ना कहीं मिल जाएगी ना। उस मेंटालिटी से okay. वो एक अच्छी थी। और ऐसा दीदी का भी घर से भी प्रेशर नहीं था कि आप काम करो। घर से भी यही था कि कि आपको पहले आप एक ये डिग्री सीए ले लो, उसके बाद आपको जो करना है, जो दिमाग में है वो कर लो। तो अगेन हाँ तेरे घर पे तेरे को कोई आप कह के नहीं बुलाता तेरे घर में तुझे कोई हर्ष कह के भी नहीं बुलाता है, अरे भाई तेरे घर पे तुझे कोई तू कह के भी नहीं बुलाता है। The name that your parents call you at your home is nowhere closer to either Harsh, आप और तू. It's something very derogatory which you can't even say. तो stop saying कि तेरे घर के लोग तुझे आप ये कर लो या आप वो कर लो, ऐसा बोला तुझे, especially after 4 attempts, no हाँ offense, but especially 4 attempts, अभी भी देखो अगर घर पे आप बुला रहे हैं तो क्या मतलब, ये मतलब is मंदिर this a soap opera where everybody calls each other आप? तो बस Okay, sorry, continue. हाँ, तो बस यही था कि फिर नवंबर 18 में थोड़ा बहुत सीरियस हो गया था कि भाई अब तो करना है, या फिर आर पार वाली सिचुएशन हो गई थी कि एक ग्रुप खत्म करो या फिर खत्म हो गया, अगर तू पूरा सीए छोड़ देगा या फिर घर से भी दीदी ने, हाँ ये बात इस बार तो दीदी से बात हुई थी कि अगर तू नहीं बन पाया इसमें तो मैं तुझे छुड़वा दूंगी, तू सीपीए कर लेना या फिर कुछ और कर लेना, Right. दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी, इसे निकाल दे अपनी जिंदगी से, भूल जा। एक खराब गर्लफ्रेंड आई थी वैसे सोच के खत्म कर दे उसको। और मतलब बट तेरा कॉन्फिडेंस कितना था नवंबर 18 में बिफोर गोइंग टू द एग्जाम, बिकॉज और ये सब बातें एग्जाम से पहले हो गई थी, राइट, कि हाँ ये लास्ट अटेम्प्ट है, हाँ, एग्जाम से नहीं, जैसे ही मई 18 का रिजल्ट आया ना उसके बाद ही ये वाली उसके बाद सीरियस, सीधी ये बात है, हाँ सीरियस राइट, टॉक हो ओके. गई। उसके नेक्स्ट डे ही जैसे रिजल्ट आया कि भाई अब नहीं होगा, अब हमसे भी नहीं, क्योंकि घर में भी पापा मम्मी 5-6 साल से मतलब कहीं पे जाना नहीं, किसी को घर पे बुलाना नहीं, किसी के घर पे भी जाना नहीं, कोई मेहमान भी नहीं, कोई यहाँ पे भी नहीं, वैसे भी कोई पार्टी नहीं, कोई राइट. फंक्शन में भी नहीं जाना, वैसे वाला हो चुका था। एंड बाय द वे, मतलब for the 2 people that are listening, I'm not sure how many are, but नवंबर का एग्जाम मतलब दिवाली पे होता है. हाँ अरे when I भाई, say दिवाली पे होता है, अरे it's on दिवाली, because तू November 15 में we have gone to the exams on the day of New Year's हाँ or Diwali, and New Year I mean the Gujarati New Year, and I've seen भाई invigilators एकदम रेडी होके आ रहे हैं. सो जो मैम है जो एग्जाम हॉल में शी इज देयर, अरे एकदम तैयार हो गया आती थी टिप टॉप, शी इज देयर लाइक द वेरी मोमेंट आफ्टर द एग्जाम इट्स हर वेडिंग. ऐसा लगता है कि उसके शादी में उसको जाना है, ऐसा तैयार होके इन्विजिलेटर्स आते थे ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन दिवाली, एंड हम लोग जिनके बाल 6 महीने से कटे नहीं, जो लोग एंड वी आर गोइंग देयर, हम लोग जो है जो 6 महीने से बाल नहीं कटाए, शेव नहीं किया है, शायद 2-3 महीने से कोई सोया नहीं होगा बिकॉज इतना पढ़ना है. वी आर गोइंग देयर इन सच अ सिचुएशन, मुंह धोए बिना, और वहां पे
जो मैडम हमें पेपर दे रहे, शी इज सो रेडी। हाँ, अरे एकदम झुमके उमके लगा के एकदम because it's नेकलेस। yes, and this will be like, oh क्या मतलब हम क्या लाइफ जी रहे हैं, मतलब लोग पटाखे। I remember I used to wake up at 4 because I was a night owl, so मैं sorry, the other way around, I used to sleep at 4 because I used to study up to 9 up to so मुझे याद है बिफोर दिवाली और बिफोर न्यू ईयर्स, बिकॉज हमारा पेपर ही न्यू ईयर्स पे था। सो द नाइट बिफोर आई वाज रीडिंग लाइक 2 बजे 3 बजे 4 बजे 4:30 बजे, आई थॉट ओके आई विल गो टू स्लीप नाउ एंड देन आफ्टर लाइक 3 hours I'll wake up. The moment I went to sleep at 4:30 or 5 a.m. मेरे फ्लैट में बच्चे 5 बजे सुबह नीचे निकल के पटाखे फोड़ रहे हैं बिकॉज दिवाली है। मतलब मैं 5 बजे सोने जा रहा हूँ बिकॉज आई नाउ थिंक मुझे अभी आराम की जरूरत है, सो I'll take a nap of or maybe I'll sleep for 2-3 hours. मैं जिस मोमेंट पे सोने जा रहा हूँ उस मोमेंट पे वो लोग आके पटाखे फोड़ना चालू किया उस दिन पे। So this is, I mean, again, sorry to be going on a tangent here, but this is how the exams are scheduled on Diwali in November attempt, and this is what दिवाली की बात कर रहा है ना तू ऐसा समझ ले कि नवंबर 12 से मैंने एक भी दिवाली नहीं मनाई, शायद एक मनाई है और एक नवरात्रि बनाई है, उसके बाद ना दिवाली है ना घर में भी बनाई। मतलब अब सोच ले नवंबर 12 से लेकर नवंबर again CA exam is not one person giving a CA exam. It's not the student doing CA, it's the whole family doing CA. Exactly. Or whole family giving the exam for every 6 months. और उस बात पे सपोर्ट तो रहता था कि क्योंकि 8 साल से ना मैं गया हूँ ना सिस्टर गई है ना फिर पापा मम्मी कहीं पे भी गए हैं। वैसे दिवाली में भी और या फिर नवरात्रि कोई भी ओकेजन हो तो मे में भी सोच ले या फिर नवंबर में भी सोच ले, ये सपोर्ट रहता था। एंड मोटिवेशन फैक्टर बोल ले या फिर केप्ट गोइंग वाला फैक्टर बोल ले, यही वाला रहता था कि चलो एटलीस्ट कोई नहीं बिलीव कर रहा है ना तो एटलीस्ट घर पे तो 3 लोग है कि जो मुझे बिलीव तो करते हैं कि मैं घर पे है, right. हाँ, कि 3 लोग तो है एटलीस्ट कि मुझे जानते हैं कि चलो तू हो जाएगा, तू है कैपेबिलिटी तेरे में, बस अभी तुझे डिग्री नहीं मिल रही है या फिर तेरा नहीं हो रहा है जो भी। मुझे प्रॉब्लम यही लगा कि नवंबर 18 तक भी मेरा माइंडसेट मेरा क्लियर नहीं था। चलो फर्स्ट ग्रुप नवंबर 18 में मेरा हो चुका था, 45 और 50 लॉ और ऑडिट में आ चुके थे, मतलब मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो चुका था, लास्ट एग्जामिशन वाला था तो वो निकल गया। एंड देन फिर मेरा माइंडसेट धीरे धीरे बदलने लगा कि नहीं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटे या मतलब 12 घंटे या 14 घंटे सिर्फ पढ़ाई करो, ये एक मैटर नहीं करता। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप 10 घंटे भी पढ़ो बट उतना पढ़ो कि आपकी एंड कैप हर रोज एक ना एक रिपीट करते जाओ। जैसे कि एक वीक में पढ़ा है तो नेक्स्ट वीक भी थोड़ा उसका रिपीट कर लो। तो उसके बाद right. Of course, I mean, yeah. फिर आया May 19 एंड November 19। मैंने सेकेंड ग्रुप दिया बट मेरा November 19 में क्या हुआ कि AMA में मैं सब में मेरा अग्रीगेट 190 हुआ था और अग्रीगेट में मुझे पता है कि AMA में 35 जैसे आ चुके थे मेरे। मतलब उसमें मैंने 2 सम मुझे पता था फिर भी मैंने गलत करके आ चुका था। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस या कुछ भी बोलो, पता नहीं क्या हुआ, एग्जाम में मैंने मतलब टट्टी कर दी वैसा हो चुका था एग्जाम में। मतलब जाके बहुत पहली एग्जाम थी तो कुछ ना कुछ वो दिमाग में चल रहा। नहीं, नवंबर में वो एग्जाम लास्ट चली गई थी, फर्स्ट एग्जाम होती ना तो एटलीस्ट क्योंकि पहले 10 दिन मिल जाते पढ़ने को तो वो कर सकता था। बट AMA में क्या हुआ कि वो एग्जाम लास्ट चली गई थी तो उसकी वजह से मुझे एक दिन ही मिला था वो। बिकॉज एंड इफ आई रिमेम्बर दिस करेक्टली, क्योंकि पेपर लीक हुआ था ऐसा कुछ। हाँ, पेपर लीक हुआ नहीं था उसमें, शायद May 19 में तो इलेक्शन थे शायद, और नवंबर 19 में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, शायद लीक वाला ही हुआ था। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे भी पता नहीं है, कुछ हुआ था तो उसका बिकॉज हाँ मतलब आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट साइकिल ऑब्वियसली, बट मुझे हाँ उतना पता है कि कोई एक अटेम्प्ट में
एक पेपर को उन लोगों ने ऐसे शफल किया था, हाँ या हाँ एक हाँ, एग्जाम नहीं शफल किया था। वो कोई और था, वो कोई और था शायद अटेम्प्ट, मुझे भी याद नहीं है, हुआ था ये मेरे ही अटेम्प्ट में हुआ था, मतलब सारे अटेम्प्ट तो दे ही चुका हूँ तो Okay. So कोई ना कोई you are अटेम्प्ट में now तो हुआ a है। repository. So you are now a repository of CA final papers of last 5 years, अरे right? सारे ऐसा बोल सकते हो मतलब। पूरे And this is a very polite way of putting it, rather than saying कि तू 5 साल से 10 अटेम्प्ट दे रहा है, उससे अच्छा मैं बोल सकता हूँ कि पिछले 5 साल में सर मैं सीए पेपर फाइनल में जितने भी पेपर्स आए वो कलेक्ट कर रहा हूँ सब तेरे पास पड़े, सब तेरे पास पड़े। हाँ अरे जिसको Okay. चाहिए उसको मैं शेयर So कर सकता हूँ। so November 19 तक पहुंच गए हम लोग अभी। हाँ And एंड फिर okay, आया so now coming back to the original question, तूने अभी भी, so you shut off everything हाँ in real life and in social media from November 17, और अभी November 19 में पहुंचे, अभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ तेरे को ओके चल पढ़ने में तो ऑब्वियसली फर्क आया होगा क्योंकि बहुत सारा टाइम तेरा बच रहा है उसमें, बट तेरे को मेंटली कुछ फर्क पड़ा उसमें अरे जब ये सब बंद मेंटली किया तुमने तो? बहुत फर्क पड़ा क्योंकि यू नो अब क्या हो जाता था कि यू नो अब आप देखते हो ना कि आपके, भले मैं कोई सोशल मीडिया नहीं यूज करता था बट दीदी से भी पता चलता था कि इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, ये सुनने में आता था ना तो अपने दिमाग में ही यू नो आपके पर्सपेक्टिव में आप दिमाग में ये घूमता रहता है कि भाई तू बकवास है, तूने कुछ नहीं किया लाइफ में, यू नो सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत आ चुका था तब तक। अब सब कुछ ब्लेम बंद हो चुका था, अब थोड़ा दिमाग सही बैठ चुका था, बट अब क्या हो रहा था कि मैं खुद पे ही क्रिटिसिज्म ज्यादा कर रहा था कि भाई तू इतना बकवास है, कि भाई तू सबसे घटिया आदमी है, तू कुछ नहीं कर पा रहा है, तू लाइफ में सबसे सड़ा हुआ है, तू घर में भी कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ये हो रहा था क्योंकि जॉब तो मैं कहीं जा नहीं रहा था। हाँ बट मैंने 6 महीने सिर्फ एक जीएसटी कंसल्टेंट से वहाँ फ्री में काम किया, सिर्फ जीएसटी सीखने के लिए। जैसे मई में एग्जाम दिया तो मैंने उसके बाद मैंने 2-4 महीने सिर्फ सीखने के लिए जा रहा था क्योंकि ऐसे माइंड बेकार पड़ा रहा, इससे बेटर मैं कुछ सोचा कि मैं जीएसटी कुछ सीख लेता हूँ, ऐसे ही कहीं फ्री में कहीं पे जा रहा था मैं। तो इतने मतलब आई कांट इवन इमेजिन बिकॉज 2-2.5 साल एक one person stays at home without interacting with the outside world, without interacting on social media. अभी तू सडनली डिसाइड कर रहा है कि मुझे लर्निंग के लिए एक जॉब में जाना है, आई मीन एट नो पे ऑब्वियसली, बिकॉज तेरा पर्पस लर्निंग का, you don't want to make money, you just want to learn things. How do you tackle that? Because 2.5 साल के बाद if I am staying in a room where I am not talking with anybody else, where I am just reading same books, subjects, same books again and again, yes. और बाद में मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मैं कल से एक जॉब में जाऊंगा जहाँ पे एक्चुअल में लोगों के साथ मुझे इंटरेक्ट करना है, डील करना है और बात करनी है एंड रिस्पॉन्ड भी करना है। हाउ डू यू नेविगेट दैट? बिकॉज आई कांट इवन इमेजिन कि ये लोग कैसे जाते हैं, ट्रांजिशन कैसे होता है। तेरे मतलब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? हाँ मैं यही बता रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं था कि पूरे दिन घर पे ही रहता था। नवंबर 17 के बाद मैंने लाइब्रेरी तो एटलीस्ट ज्वाइन कर दिया था, तो लाइब्रेरी में 1-2 दोस्त थे कि जो सेम सिचुएशन में थे। नवंबर 17 के बाद हाँ ये मुझे कहना रह गया कि मैं लाइब्रेरी जाता था। So मुझे लाइब्रेरी इज अनदर thing which I don't understand I'm specifically talking about the CA fraternity. Is library actually useful or not? Yes, मेरे लिए तो हेल्पफुल रही है भाई, क्योंकि अगर मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ ना तो उसकी वजह से ही हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं बात बहुत कम करता था या फिर यू नो जनरल टॉक ही होती थी कि भाई क्या कर रहा है, कहाँ से लेक्चर लिए, क्या कर रहा है, वैसे वाली टॉक रहती थी। फिर यू नो वो हर रोज वो चाय पे पीने जाना और वैसा वाला नहीं था कि तू क्या कर रहा है, चल चाय पीने चलते हर 1 घंटे में 2 घंटे में, वैसे वाला नहीं था। हाँ, and that is the exact reason I asked, because है मेरे 2-3 friends और the people, I mean maybe people not friends, but there are people you know, yeah, there are people I know that
you started going to library like after 2 attempts, like वो बहुत serious हो गया life कि घर पे नहीं हो रहा है काम. और I mean it's justified because Indian households are very noisy, right? हमारे घर पे not everybody has a separate room पढ़ने के लिए. There's not always a study for anybody else, and there are always siblings in our house. ऐसा मतलब one child household is a very rare thing. So again, it's good that you started going to library, but then I know people के then वो लोग library जाते literally as you mentioned कि हर 2 घंटे में मेरे को चाय पीने मिलेगा. या फिर हर 2 घंटे में I would go to ऐसे ही घूमने like चलो a नीचे. place where I can eat something. Just to hang out with people, and specifically कि parents कुछ नहीं बोलेंगे मेरे को. They think I am at a library where I am studying for 14 hours a day, and मैं घर पे शाम को आ रहा हूँ, and शाम को आने के बाद I am entitled to do anything. ये because घर पे पता है कि मैं 15 घंटे पढ़ के आया हूँ, तो they will also treat me as a person के पढ़ के आया है. like our child has studied a lot today, अभी जो करना है उसे कर लो. तो अभी रात को आया है, तो अभी जो करना है वो. And that is where I think that is the biggest problem. And I'm not saying libraries are bad. Again, it's not the message, but I think there are people who use library as a front to show कि इतना पढ़ाई हो रहा है. Yes, and that is not something we should do. मैं ऐसा नहीं किया. मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ. अरे भाई मैं बताता हूँ. मैं लाइब्रेरी में मैं I will not specifically name them, but मैं जानता हूँ कि बहुत कम पढ़ते थे भाई. 6 घंटे पढ़ते थे, घूमने जाते थे, फिर भी नहीं हो रहा था. फिर भी वो लोग पास हो गए. वो लोग पास हो गए. मतलब मैं देखता था लिटरली कि वो भाई 8 या 6 घंटे पढ़ते थे और फिर पास हो जाते थे भाई. और तब बुरा लगता था. तब भी वो so maybe I am wrong then. Maybe शायद नहीं, बट कुछ लोग ऐसे कितने हैं. बहुत कम. मैं वैसे नहीं बोल रहा. और एक दूसरे भी पर्सपेक्टिव ये है कि जो भाई लाइब्रेरी में आएंगे 5 साल वैसे निकाल देंगे. मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ कि who has crossed 30 years. They are at the age of 32, 34, 35 and still वो लाइब्रेरी में आके भी पढ़ रहे हैं. एंड फिर कुछ नहीं हो रहा है. फिर घर पे यही बस तूने जो बताया ना कि 12 घंटे में पढ़ के आ रहा हूँ, अब मुझे घर पे आके जो करना है मैं करने वाला हूँ. अब मुझे कोई नहीं बोलता जो करना है. Now I can watch जो मुझे I can watch anything I want. मैं अभी और 35 अभी रात को फ्रेंड्स के साथ बाहर भी जा सकता हूँ क्योंकि पूरा दिन में और ये हुआ है 30-35 साल हो चुके. बट उन लोगों को आई डोंट नो कि उनकी मैच्योरिटी नहीं है या फिर उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता. अब हर एक का, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि कोई पास होता है कोई नहीं होता है. ये हर एक का पर्सपेक्टिव और होता है. बट अगर आप पास नहीं हो रहे ना, तो मेरी ऐसी सोच है कि भाई मैं सीरियस नहीं था. मुझे पता है, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मैं किसी के और के बारे में नहीं बता सकता. बट अगर जनरली वैसा ही होता है या फिर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है घर में कि आपकी जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है घर में, तो फिर और कोई बात है कि कोई और चीज है कि घर में कुछ और हो गया, आपकी शादी हो गई या फिर कुछ भी, कोई भी रीजन ले ले. बट so self realization is a big thing. That is the important thing that you मतलब अगर वो है तो जल्दी पता चल जाएगा कि क्या मतलब what is a capability and what you can and cannot do, right? So ठीक है. I mean so interesting journey, right? I mean yes. We never had a chance to talk about this ever. This is the first time we are talking about this. And this is the first time I am hearing anybody's story, and this is not your personal story, right? I mean yes. Of course it is your personal story, but ये चीज बहुत लोगों के साथ होगी कि सबकी स्टोरी और yes. बहुत लोगों की हो चुकी है. और किसी ने तो छोड़ भी दिया है. कोई लोग मैं जानता हूँ, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने छोड़ दिया है भाई. दिमाग of course. But November 19 yes. November 19 तक आ गए. Okay. So अभी भी you are off, right? अभी भी you are off. Yes. अभी भी किसी से बात नहीं हो रही है. So next attempt is now May 20. ये टर्निंग पॉइंट. So मेरे questions now again turning point तेरे साइड से भी है because
शायद तेरा एक ग्रुप हो गया है, तुझे हम्म, सिर्फ एक ही ग्रुप देना है अभी। हाँ, टर्निंग पॉइंट मेंटल वो भी स्ट्रेस है इतना नहीं बिकॉज है। इट्स, हम्म। बट अगेन सिर्फ तेरा लाइफ चेंज नहीं हुआ है, वी आर टॉकिंग अबाउट May 20, इट्स हाँ, इन द मिडल ऑफ अ everybody's life पेंडेमिक। has been सो totally सिर्फ तेरा changed। हाँ, लाइफ इफेक्ट नहीं हुआ, यस, हाँ, एवरीबॉडीज लाइफ इज नाउ चेंज। सो हाउ, सो ओके, लेट्स गो थ्रू दैट। सो क्या, सो तेरा रिजल्ट आया, which generally comes in January and February, right? January, If I'm not January, wrong. तो January 20, तेरा yes। फर्स्ट ग्रुप, ये तो तेरा हाँ, फर्स्ट ग्रुप January 20 में क्लियर हो गया। नहीं अभी घर पे नहीं 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 नहीं, कुछ जनवरी में चेंज? नहीं, जनवरी 19 में मेरा क्लियर हो चुका था, नवंबर 18 में, क्योंकि मैंने बताया मई 17 से लेके नवंबर 18 में, मेरा Oh, नवंबर right, 18। right. Okay, sorry. So your हाँ, तो first group is already जनवरी clear. 19 में मेरा क्लियर हुआ, मई 19 और नवंबर 19 में मेरे सेकेंड ग्रुप ही बाकी था, एक ही ग्रुप बाकी था, बट वो भी और वो क्लियर नहीं भी हुआ। नहीं हो रहा है। हाँ, मेन ए में मेरा थोड़ा, ओके, हाँ, मतलब सब्जेक्ट्स सबके सब्जेक्ट कुछ ना अलग अलग कुछ होता है, वीक किसी के पॉइंट्स इसका होंगे। होता है, किसी के लिए डीटी होता है, किसी के लिए आईडीटी होता है। आईडीटी तो जनरली कम ही होता है, डीटी होता है या फिर इसका होता है, और ए में होता है, 3 सब्जेक्ट है मेन। तो फिर आया So मई 20। again January 20. हाँ, फिर आया मई 20। ओके, बट January 20 में रिजल्ट आया, अगेन हाँ, नेगेटिव रिजल्ट आया, राइट? नेगेटिव रिजल्ट आया। अभी तब तब वापस कोई बात हुई, तब कोई वापस बात हुई कि ये अभी वापस लास्ट चांस है, बिकॉज फर्स्ट हाँ, ग्रुप के लिए तेरा अल्टीमेटम था, व्हिच वाज इन हाँ, November 18। नवंबर अभी 18। वापस ऐसा कोई डिस्कशन? हाँ, ये मई 19 में भी हुआ, बट इतना सीरियसली नहीं हुआ, बट नवंबर 19 में हमने बैठा है, हम 6-7 घंटे बैठे घर में कि भाई ओके, अब तेरी मेंटली तू अब थोड़ा पागल हो रहा है, तू किसी से बात नहीं कर रहा है, तू कहीं नहीं जा रहा है, और ये क्या हो रहा है कि मैं आप गुस्सा ज्यादा करने लगते हो, ऐसे होता है ना, तो आप, yeah, I mean you get हाँ, annoyed on very little things, वेली, like वो अरे तो बहुत बहुत ज्यादा, और that लड़कों में happens to every, I एवरी mean that गाय, happens to मैंने तो me देखा है कि हर after लड़के a couple of days work. So after 3 years of attempts I can only मतलब yeah, it's very natural कि you will get annoyed on those things. अरे मैं 2 बहुत दिन छोटी ज्यादा छोटी। काम करता हूँ तो I start to get annoyed with people in my life or with people in my work. बट मतलब मैंने अगर ये हालत होती, ये जाना है कि भाई या अगर ये चीज आपकी फैमिली के साथ रिलेशन बहुत बिगाड़ती है भाई। मेरी भी यही हुआ है कि ओके, सो चीज आई मतलब आई डोंट थिंक इट्स, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग बहुत रहा झगड़े, ये थोड़ी थोड़ी बातों बिगाड़ पे रही है रिलेशनशिप। आई थिंक बिगाड़। इट्स मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर, आई थिंक इट्स मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर। हाँ, आई अभी मतलब सी हो रहा है, अगेन आई हैव नॉट गॉन, यस, सो स्ट्रांग हो रहा है, वैसे वाला नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी बातों पे झगड़ा हो जाना या थोड़ी थोड़ी बातें पे आनाकानी हो जाना, वैसे वाला। स्ट्रांग तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ, हाँ ऐसा है, फैमिली ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग नहीं, बट कोई और भी बहुत सारे तरीके हैं कि भाई फैमिली रिलेशन स्ट्रांग हो मतलब सकते हैं। हाँ, we don't suggest doing this at don't try this at ये 5 साल ऐसे so करके अपनी स्ट्रांग मत करो। yes, ऐसे स्ट्रांग मत करो, there are many, there are healthier मैंने, ways to हाँ, yeah, okay, ये टॉक्सिक वे right, है। so ठीक है, so we come to May 20, right? So now हाँ, we come to the attempt मई which is in 20, the middle हाँ, of मई a 20, pandemic. मई 20। Yes, so what is the situation, मतलब after March क्या होता है, मतलब because and okay again हाँ, for the 2 people that are watching who don't know कि ICI क्या है, so ICI is the organization which actually handles everything, yes, and which is the CA fraternity, by the way. So वो CA के exams वो schedule करते हैं, they give out the degrees, they give out the certificates, and everything is managed by that organization in our country. So मार्च में ये लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है कंट्री वाइड। क्या क्या फिर व्हाट डिड यू स्टार्ट गेटिंग एज नोटिफिकेशंस फ्रॉम ICI कि अब क्या होने वाला है, एग्जाम्स का क्या सिचुएशन है? कि जैसे ही मई में एग्जाम थे, मई के एग्जाम से पहले ही, मतलब 1 महीने पहले ही या 15 दिन पहले ही ऐसा आ गया कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, तो जून में जा रहा है, जून के बाद हो गया जुलाई में आ जा रहा है, जुलाई के बाद हो गया अगस्त में जा रहा है। मतलब जनवरी से तो मैंने पढ़ना चालू कर दिया था, लाइब्रेरी तब छूट गई थी, फरवरी से आई थॉट कि मैं घर पे ही पढ़ रहा था।
Okay. एंड देन ये स्टार्ट हुआ ना जैसे जैसे जर्नी, तो अब तो कोई फ्रेंड से बात नहीं हो रही ना, लाइब्रेरी में भी एक दो दोस्त से थे, उससे भी बात नहीं हो रही, किसी से भी नहीं हो रही मतलब। तो अब क्या हो गया कि अब घर पे भी इतना नहीं, मैं 12 घंटे रूम में बैठे रहते थे और पढ़ना है या फिर लेक्चर देखता रहता था। तो अब क्या हुआ कि पूरे दिन लेक्चर तो देख नहीं सकते, और ऑलरेडी मैंने सेकेंड ग्रुप के लेक्चर 2 साल नहीं, मैंने अगले 3 साल तो मैं पढ़ता ही रहा था। सेकेंड ग्रुप मैंने ऐसा नहीं था कि छोड़ दिया था, मैं ऑलरेडी 5 साल से मतलब हाँ, 2015 ऑफ से कोर्स, मतलब 2015 से पढ़ ही ऐसा रहा तो हूँ। नहीं है कि राइट कि यू हाँ फॉरगॉटन अबाउट दोस सब्जेक्ट्स हाँ कि वो इग्नोर ही कर रहा है, यू आर स्टिल स्टडीइंग। हाँ, यस, ऐसे मतलब थोड़ा ऊपर से सब्जेक्ट में क्या है वो तो पता था एटलीस्ट, कि कुछ नहीं है बट थोड़ा थोड़ा तो पता है चलो। तो बट नवंबर 18 के बाद जो मतलब फर्स्ट ग्रुप क्लियर, उसके बाद ज्यादा फोकस हो गया कि क्योंकि सेकंड ग्रुप भी बाकी था, तो ज्यादा फोकस होने लगा कि अब मई 19 है, नवंबर 19 में सेकंड ग्रुप ही है, तो हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली फोकस करना था। हाँ, इंडिविजुअली फोकस कर सकता था बेटर तरीके से, जो मैं फर्स्ट ग्रुप की वजह से मतलब जो बाकी रहता उसके नहीं कर पा रहा था। तो अब मई 20 में तो अब तो सारे सब्जेक्ट अच्छी तरीके से आ चुके हैं। अब वैसा नहीं है, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं गलतियां क्या कर रहा था। गलतियां, मैं पेपर राइटिंग इज अ मस्ट। मैं तो मानता हूँ कि भाई अब पेपर, आप अच्छे नहीं हो ना, पढ़ाकू नहीं हो, तो आप पेपर लिखो, इज मस्ट। नहीं और लिखोगे। व्हेन यू से पेपर लिखो, नॉट एज एन एक्चुअल अटेम्प्ट, उसके पहले हाँ। उसके पहले पेपर, मतलब पीपल आर मुक लाइक ओके मैं पेपर लिखने ही तो जा रहा हूँ, तो सीधा एग्जाम में, आईसीआई वाली मेरा एग्जाम में नहीं, मूक टेस्ट होती है या फिर कोई और जीएम yeah, I टेस्ट, mean there are जीएम, ways you हाँ can जीएम learn. टेस्ट सीरीज है, सीए टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी है मार्केट में, बट ये दोनों Right, right. रेप्यूटेड है, तो आप इसमें से कोई चॉइस कर सकते हो। Hmm. बट उसके बाद क्या हुआ कि ये रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया कि चल अब तो अब आ रहा है, तो मैंने ऐसे तो यूट्यूब पे सब देखते हैं कि सारे बुक्स पढ़नी चाहिए, बट कोई पढ़ता तो है नहीं। बट एक बुक सिर्फ मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें ये लिखा था कि आप 100 में से 95% टाइम आप अपने इमेजिनेशन में ही घूमते रहते हैं, 5% आप एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कुछ करते हैं। सो ऐसे मैंने सोचा कि कुछ भी करके कोई एक बुक्स तो मैं साइड बाय साइड 1 घंटा दे दूं, देखिए क्योंकि पूरा दिन पढ़ता ही था, तो मैं सोच रहा था कि पहले ही उसके 2 महीने थोड़ी छोटी बुक्स चालू करूं। तो And वो एरिया ऑफ, again, these are books. These are not हाँ, study books. They are not different not books, related to like not related to CA, yes, philosophical books or philosophy, life lessons or सेल्फ हेल्प, things like that. सेल्फ हेल्प कोई भी, हाँ। Self-help books. Okay, yeah. तो वो And स्टार्ट that you started in May 20. मई 20, हाँ मई 20 नहीं, इन फेब्रुआरी 20 से, मतलब एक दो, क्योंकि 3 महीने बाकी थे, तो मैंने सोचा कि अब पूरा तो मैंने पढ़ चुका है, अब सारा ज्ञान मैंने ले चुका है, हर एक बुक्स मेरे रट चुकी है भाई। 4 साल में कोई ऐसी बुक नहीं होती कि भाई एक एक सेक्शन के साथ याद रहता है, बट एग्जाम में आप कुछ Right. गड़बड़ कर देते हो, वो कुछ और होता है। स्टार्ट किया एक दो बुक से, देन ज्यादा ज्यादा वो इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर बुक्स भी चालू की, उसके ऊपर और कभी बात करेंगे। बट बस फिर नवंबर 20 में आया, बट क्या हुआ कि एग्जाम के मेरे 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ही बॉम्ब को कोविड हुआ, एंड देन उसके 2 दिन के Oh, बाद ही, हाँ, उसके 2 दिन बाद ही मेरा कोविड डिटेक्ट हुआ। मतलब मैं हॉस्पिटलाइज हो गया 4-5 दिन के लिए, और कंटिन्यूसली 102 103 ताव रह रहा था, मतलब बुखार रह रहा था। matlab, which month was it? This was in which month? नवंबर, मतलब नवंबर के पहले वाला सोच लेना रे, अक्टूबर में, अक्टूबर में। नहीं, I don't have to think. वो कैलेंडर नवंबर के पहले अक्टूबर ही आता है। पर उनको सोचने की जरूरत नहीं है, अक्टूबर इज बिफोर नवंबर, हाँ, सो अक्टूबर के एंड में ही, अक्टूबर के एंड में ही शायद आया, एंड देन और मैं हॉस्पिटल हुआ है इसको। बट दिवाली के टाइम पे यहाँ पे मतलब कोविड की सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब थी, अहमदाबाद में मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं मिल रही थी, वो कोई और इश्यू है, चलो वो कभी बात करेंगे। और बट बस एग्जाम से पहले ही ये आ गया। फिर आईसीआई ने इस बार ये सही किया था कि जिसको अगर नवंबर में कोविड डिटेक्ट होता है, तो उनके लिए जनवरी में एग्जाम कंडक्ट करवा रहे थे। इन लोगों ने, इसमें से किसी ने फायदा भी उठाया, और क्योंकि मई में एग्जाम नहीं हुए थे, तो इस साल 2 एग्जाम तो लेने थे, मई वाले लेने थे, बट मई वाले हुए नहीं, तो नवंबर और जनवरी में एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दिया, तो वो एक बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। बस अब एग्जाम दिए, देखते हैं।
मार्च में तो रिजल्ट आ रहा है एंडिंग में. So now, okay, so now we are waiting for your results of Yes. January 21 attempt. Yes. So Or okay, so if you don't mind me asking, ये कौन सा attempt है in total in 4 or 5 years? 5 Which number? साल मतलब 5 साल तो वैसे ही गिन ले. 10 attempt हो गए. 10 ये 11वां अटेम्प्ट समझ ले. This was 11th. Okay. नहीं 10 क्योंकि मई में तो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ था ना. Okay, right. Yeah. May So 20 में थे. 10th attempt of your CA final. Yes. And now you are waiting for your result for the second group. Yes. And let's hope you get this. Otherwise, this I will. Because I don't want to have this discussion again because it's pretty serious. I mean, when you know, think अभी about, इतनी जो नॉर्मली इससे बात हो रहा है ना, बट जो 3 साल में मैंने जो सहा है या फिर जो मेंटली मैं मुझे पता है, मैं लाइब्रेरी में अकेला बैठता था ना, तो मैं कभी कभी रो पड़ता था अकेले 1.5-2 घंटे मैं रोता था, सिर्फ रोता था, कुछ और नहीं करता था. मतलब कुछ और सोच ही नहीं पाता था. ये देख हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है. मेरी लाइफ में ये आया है. बस मेरे दिमाग में ये था कि जो मैंने मैं छोड़ सकता था, मुझे भी था कि मैं छोड़ देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, एक डिग्री है भाई, कोई और बहुत बड़ी चीज नहीं है. स्किल इज अ मोर इम्पोर्टेंट. आपके पास स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, कोई भी स्किल पकड़ लो, स्किल इज बेटर कि आपके पास डिग्री है. मैं तो ये जानता. चलो अब वो पॉइंट बाजू पे रखते हैं. बहुत हो गई फेलियर की बातें, बहुत हो गई नेगेटिव बातें. अब थोड़ा पॉजिटिव साइड पे भी जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट हीरक. मेरे बातें में बहुत बातें हो गई है. लेट्स टॉक अबाउट हीरक भाई. तू बता साले, क्या हो गया तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में? मुझे पता है अब तेरे तो आगे कोई इश्यू ही नहीं है. नवंबर 15 में तेरा फर्स्ट में क्लियर हो गया. देन टॉक अबाउट इट. So I'm extremely lucky, obviously, because first not lucky, तेरा हार्ड वर्क भी था clear होना is not. So I still think matlab I didn't used to believe in luck or anything like that. I know that. Before I passed CA. The moment I passed it, the moment I got my result, I was like, okay, there's some fight. Impossible that, yes, it's impossible that I did this on my own. It's definitely not me alone. Something helped, and that's why I say that I am extremely lucky that this happened in the first go, and I got success. Let's just say. I mean, I don't have this phase, this kind of an interesting journey, right? I have never faced anything like this. Mera aisa kuch raha nahi. It was very, I can say, smooth sailing. See, I got lucky in my job as well. I got selected in a job very easily and very quickly. I have been working in the same company since now 5 years, so almost 5 years. I mean, I'll complete 5 in April, I think. So it's been very good. I've had a lot of experiences in my job, and I've. तू इंडिया में नहीं है ना अभी? तू कहाँ पे है? So I am in Sydney, Australia, and I have been living here since now a year and 2 months, I think. So I can't say that I'm stuck here. I actually like being here. So I'm definitely not stuck. This is where I prefer to be right now. So, but yeah, it's been, I mean, it's been an amazing journey. So that's the positive bit, maybe in this 40 or 50 minutes that we've spent together. And okay, so last question. Yes. Because I don't have any interesting to add from my end. I've had a very, I wouldn't say boring, but I've definitely had some experiences, but we can talk about them maybe some other time. But last question for you. So ऐसा क्यों decide किया? Because you then came out of your shell in January 2021 after the exam. Yes. कि भाई अब नहीं so Jan 21 में exam देके now you realize, or not realize, sorry, but now you thought के अभी लोगों से बात करनी चालू करनी है, ऐसा. बट लोगों से नहीं, मुझे पता है कि हरकिरत का पहला ही कॉल आया जैसा ही एग्जाम पती, उसके पहले ही दिन मेरे फ्रेंड का फर्स्ट कॉल था. कॉलेज फ्रेंड हरकिरत सिंह था, है मतलब है. तो उसका ही कॉल आया. एंड राधिका जो मेरी एक और कॉलेज की फ्रेंड है, दोनों मुझे 2 महीने से ढूंढ रहे थे कि भाई तू कहाँ है, कोई मतलब सुसाइड तो नहीं कर लिया ना इसने, कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं नहीं. So first of all,
You have to mention me because because वो लोग सिर्फ 2 मेरे महीने से तेरे को ट्राई कर I have been trying to get in touch with you 2 years. since 2 fucking years. I have called you so many times. I But- have left you so many messages on Instagram, on Facebook Messenger, on WhatsApp. Not only that, the weird part is I have actually called your sister as well. And okay, so not called on Snapchat. So I was in India for like a couple of months because my job and my profile requires me to travel a lot. Yeah. I was in India only for a month or 2 months, and I knew I have to go back or I have to come back here in few days. Yes. So I was on Snapchat. I saw Didi's snap and maybe because she has a normal life. Like she has a job and she's a normal person, unlike you. So मैंने snap उनके देखे and I replied to her saying कि मतलब how are you, कैसा चल रहा है? And then she was like, okay, I'm good. And I texted के हर्ष क्या कर रहा है? And she's like, okay, he's in library right now. He can't talk. So I know how protective she is of you. Yes. She doesn't want everybody else to or anybody else to talk with you and disturb your time. And that is, of course, I mean, that is justifiable, right? It's not, that is what siblings do. Not wrong. That is what they are. I mean, that's what they're supposed to do. So मैंने मैसेज किया कि हर्ष का है. She said कि वो लाइब्रेरी में अभी बात नहीं कर सकता. I'm like, okay, बात नहीं करनी है मुझे चलेगा. But when he's back, can you ask him to call me or text me? I am in India only for a few days. And your sister ghosted me. She did not reply at all. She left me on red. I know. This is like the worst scenario of being left on red. It's not like I'm trying to talk with a girl or I'm trying to reach somebody or I'm trying to flirt with anybody. I'm literally trying to reach out to you just to have a 5 minutes conversation and maybe if you have time, come to your home and talk to you on what's been going on since past 2 years or how are you. She just left me on red. She did not reply at all, and I don't blame her. मैं उसे blame नहीं करता क्योंकि you know of course neither do I. मैंने ही बोला था कि you know कोई भी हो, you know कोई भी अच्छा friend हो. मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक अपने भाई से बात कर रहा था और अपने 3 घर में जो मतलब मॉम डैड और दीदी से बात कर रहा था और लाइब्रेरी में 1-2 दोस्त थे बस, और किसी से बात नहीं कर रहा था. मैंने बता दिया. हर्ष 1 मिनट, दीदी ने तेरे को बताया भी था कि मेरा मैसेज आया? हाँ बताया था. I ignored it. Okay, so that is okay. So at least मतलब I think I deserve it because I was literally going out of my way to text you on every platform every few months कि क्या चल रहा है भाई, तू रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है. मैंने इतने क्वेश्चन मार्क एक सेंटेंस में कभी भी किसी के लिए नहीं डाले. अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी नहीं. Not even to my girlfriend I put these many question marks. मैं तुझे मैसेज कर रहा हूँ with 10 question marks in one sentence. कहाँ है भाई, क्या कर रहा है भाई, क्या हो गया तेरे पास. And anyway, but yeah, we don't blame her, right? We don't blame her. हर एक की सिचुएशन तू समझता है भाई. हाँ, but again, so why did you then decide to contact the people that you actually contacted, like myself or Harkirat or Radhika you mentioned? So why did you choose those people to talk with after this whole break or after this whole phase of yes. You know 5 साल में कितने लोग फिल्टर आउट हो चुके हैं. मैं you know people pleasing था जनरली. people क्या बोलते हैं, you know क्या जज करेंगे, क्या कहेंगे मेरे बारे में, मतलब अपना पर्सपेक्टिव रखो और उसके बारे में सॉरी मत फील करो, भले वो आपको डिसलाइक करे, डिसएग्री करे. तो फिर इसमें क्या हुआ, 5 साल की जर्नी में फिल्टर आउट हो गए सारे लोग कि भाई जो एक्चुअली अगर मैं जाऊँ या ना जाऊँ, रहूँ या ना रहूँ, उनको उनसे फर्क पड़ेगा. सो देन आई डिसाइडेड कि बस अपने जो ये 5-10 लोग हैं इनसे बात करो. और
यू नो आपने वो एक कोट सुना है कि जितना आपका छोटा ग्रुप रहेगा उतनी आपकी बड़ी सोच रहेगी. Yeah, of course. I mean, but तो बस मैं percentage wise, I mean, not in numbers because of course you हाँ don't know, but percentage wise, how many people stayed back or how many people did you come to realize कि ये these are the real ones? हाँ मैं बताता हूँ ऐसे बस सिर्फ 5-10 मैं बोल रहा हूँ ना जिन लोगों ने एक्चुअली इंटरेक्शन के लिए मतलब मैसेज डाले कि भाई क्या कर रहा है जिन्होंने रीच आउट किया है कि भाई तू तू ठीक तो है ना तू कुछ कोई टेंशन में तो नहीं है ना इतने बस इतना पूछने वाला कोई नहीं तो होता 5-10 लोग रह गए तेरी हाँ, लाइफ में अभी जो तो एक्चुअली में एक्चुअली में which you prefer to talk with. यस कि Yes, okay. अगर अगर मैं कुछ भी मतलब कहीं भी होगा तो ये लोग रहेंगे हमारे साथ कहीं पे भी कांटेक्ट थ्रू द फोन Right. फोन से भी या Right. फिर यू नो टेक्स्ट से भी कहीं पे भी ऐसे उनको अफेक्ट करेगा भी ये है कहाँ पे है कहीं पे भी है भाई अच्छी जगह पे है वैसे वाला. Okay. Okay. So तो at least I feel now I feel good or happy that I am one of those, yes or at least you have chosen to keep me in ना your circle. So that मेरे मैं बोल तो ये रहा जो हूँ कि सारे आपने messages थे या मेरे जो अपने जब आर्टिकलशिप में थे तभी पता चल गया था भाई तूने जैसे फर्स्ट स्टार्ट किया कि भाई कुछ और है बॉन्ड ही कुछ तो हो रहा है. because I am not comparing myself to you, but मेरे साइड से भी अटेम्प्ट जा रहे थे. मैं भी अटेम्प्ट कर रहा था, मैं भी फेल हो रहा था एवरी अटेम्प्ट में, but then this is the success that I have right now. Okay, at least मेरा final attempt अभी पास हो गया. Where you have actually responded and you have called me after your journey. ठीक है. Okay, I think we've had a very good discussion. अब हम next podcast में क्या करेंगे ये बता रहे भाई कि भाई right. So even before we go there, like so. I'll just explain the name of this podcast. So we are called the Lehman Brothers. The हमने कोई प्रमोशन नहीं किया है बीच में. Of course not. I mean, how many people are even watching this? Like I'll tell you how many people are watching. At the end. Maybe my brother, and maybe my girlfriend. I think that's it. And maybe and my they family. have, and I think they clocked out after like 20 minutes. जब तूने रोना चालू किया, I think then they left and they were like, okay, fuck this, I have better things to watch. Yes, but okay, so maybe if you are still watching us, the reason this is called the Lehman Brothers podcast is I mean layman is a term I am fascinated with because हम जब CA कर रहे होते थे तब लेमन लैंग्वेज में कुछ यस कोई भी लेक्चर था कोई भी सेशन चल रहा है तो सर आके ऐसा बोलते थे कि फॉर फाइनेंस पीपल और फॉर सीए दिस इज इट बट फॉर लेमन पीपल फॉर लेमन it's this and then he would dumb down the language he would actually explain it in a very simpler way just to make us feel like we can understand what he's saying. So this term layman I used to feel very I connected. I don't disrespectful. It's actually a term very widely used. Yeah, but it is actually something which you can say to layman. Point out anybody and attach it to him, attach it to them, right? So that's why it's called the Lehman Brothers because none of us are special. I mean, I haven't done. I've done fuck all in my life. I've got nothing to share as part of my big experience. Like Harsh, of course, his journey has been interesting, but at the end of the day, we are laymen. We have no expertise. We have no right to tell you what you should do and what should not do. And that's why we are the Lehman Brothers. And and of course, I wanted to have brothers in the name because that's just what we are. We can't avoid that term at all. Yeah. So that's why we are called the Lehman Brothers, and that's the history behind the name. भाई होने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं है. Yes, of course. So that's why we are called the Lehman Brothers. Now talking about what our future what our future plans are. Yes. So as I mean, and of course we apologize because this podcast was very CA focused and CA centric, and this is not what our intention is for the future
talks Podcast. that we do, our future Mm. conversations. Yes. But because this is the first episode, the introductory episode, where we have to Introduce tell you guys ourselves. who we Wow. are and Yes. why we are here, or why we are talking about things Yeah. which we are. So, and that's why we had to jump in all these details of what's the life of a CA finalist who is getting attempts since so many years, or what's the life of a person who has done CA and Yeah. now living a normal life. So that's the overall purpose, and that was the overall purpose Mm. of the first episode. Mm. In the future episodes or future conversations, we are going to have Yeah. different people from different Mm. areas of life. So people who we already know, Yeah. people who we already know, who have, I would not say suffered, but who have gone through so many different experiences in their life. Yes. We want to talk with them. Yeah. We want to have a good conversation. A real conversation. Yeah. Yes, a real conversation with them, with and ask them questions. Ask them questions on how they felt during what they were experiencing. Yes. What was their mindset? What were they thinking going through the whole journey in their life? So that is the intention of this podcast. So we are going to have different we're going to different have categories of people. Exactly, and that's the main motto of this, because we can't keep talking always and forever. So we have to have somebody who actually teaches something and who actually share something with us from which we can learn. So that's the agenda. So I think that's it. Okay. I mean, amazing talk, Harsh. Thank you for sharing it. I mean, and it's genuinely, I've never had this discussion with you or with anybody who has gone through this. I know 10 people who has gone through almost the same journey as you. Yes. But I've never had a chance to talk with them to this detail and in this and know these kind of things that they've suffered or gone through. So thanks for sharing. And thanks guys, whoever's watching, thank you. And we'll see you next time.